चलो स्टार्ट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग एसिम्पटोट्स देखते हैं कि क्या होते हैं और हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। सो एसिम्पटोट की सीधी सादी डेफिनेशन तो ये है कि अ स्ट्रेट लाइन दैट continually approaches a given curve but does not meet the curve at any finite distance. और तीन तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं हमारे पास: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ये तीन टाइप्स के एसिम्पटोट्स हैं हमारे पास। तो से के मुझे वर्टिकल चलो एक एक करके सबको देखते हैं। से के वर्टिकल एसिम्पटोट जो है वो निकालना है मुझे। तो सबसे पहले तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट डायग्रामेटिकली क्या होता है, कैसा होता है। तो से आपके पास x इक्वल्स a पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देती हूँ मैं, और मेरा जो फंक्शन है वो इस लाइन को अप्रोच करता है बट कभी भी इसे टच नहीं करता है। तो ऐसे में मैं ये जो x इक्वल्स a वाली वर्टिकल डॉटेड लाइन है इसको मैं एसिम्पटोट कह सकती हूँ, एक वर्टिकल एसिम्पटोट कह सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो मैं मुझे ये वाली चीज नजर आ रही है कि as x approaches a my function approaches infinity। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच कर रही हूँ ना। as x approaches a from the left hand side my function is approaching positive infinity, but I can have different graphs। किसी ग्राफ में x जो है वो किसी वैल्यू a को अप्रोच कर रहा हो सकता है from the right hand side and the graph can be approaching positive infinity, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैं एक वैल्यू a को अप्रोच कर रही हूँ from the right hand side and the graph is approaching negative infinity, ठीक है। लेकिन ऐसे हर सिनेरियो, हर केस में I would get a vertical asymptote at x is equal to a। तो I can write down कि there would be a vertical asymptote x equals a if at least one of the following is true. Number one, limit x approaches a from the left hand side of f of x equals positive infinity. Number two, limit x approaches a from the right hand side of f of x equals positive infinity. Number three, limit as x approaches a from the left hand side of f of x equals negative infinity. And number four, limit as x approaches a from the positive side of f of x or from the right hand side of f of x equals positive infinity of x equals of f of x equals positive infinity। अच्छा, ये तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स की एग्जिस्टेंस की कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को।
सो से अब पहले तो ग्राफिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। से के मेरे पास y इज इक्वल टू ये y एक्सिस x एक्सिस y इज इक्वल टू l पे मैं एक डॉटेड लाइन बना देती हूँ और मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। So what I can see is कि as x is approaching infinity, my function is approaching this value L. So as x is approaching positive infinity, सिर्फ infinity नहीं, positive infinity को x approach कर रहा है, तो as x is approaching positive infinity, my function is approaching a finite value that is L. So in such a scenario, I get a horizontal asymptote y is equal to L के जिसको मेरा फंक्शन अप्रोच जरूर करता रहेगा बट कभी भी टच नहीं करेगा। हाँ, ये इस लोकेशन पे टच करना डज नॉट मैटर, ठीक है, लेकिन एज आई एम अप्रोचिंग इंफिनिटी my graph would never touch this line y is equal to L. अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ कि there would be a horizontal asymptote y equals f of y equals L if at least one of following is true. Number one, limit as x approaches positive infinity of f of x equals some finite value L, or limit as x approaches negative infinity of f of x equals some finite value L. ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई या कह लो कि कंडीशन हो गई कि जिस पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर सकती है एंड दैट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वुड बी y इज इक्वल टू L. अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने सीधा सीधा थ्योरेटिकल डेफिनेशंस लिख ली हैं, तो अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आए. So say for example you have a function that is x plus 3 times x minus 1 over x plus 2 times x minus 2, and you're asked to find vertical and horizontal asymptotes, and you're also asked to sketch the graph. Okay, so vertical asymptotes निकालने के लिए what you would do is कि आपने देखना क्या है vertical asymptotes निकालने के लिए कि when does f of x approach to infinity, and that can be either positive infinity or negative infinity. तो अगर मुझे ये चीज देखनी है तो मैं यूं करूंगी कि सबसे पहले मेरे ज़हन में जो चीज आएगी वो ये कि चलो मैं ये करती हूँ कि मैं डिनोमिनेटर को 0 पुट करके देख लेती हूँ, मेरे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी कि जिनको मुझे अप्रोच करना है टू टू नो कि अच्छा मेरा फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो डिनोमिनेटर को जब मैं 0 पुट करती हूँ तो व्हाट आई गेट इज x इक्वल्स -2
or x equals 2 as the solution to the denominator to be put to 0. और इन दो वैल्यूज पे अब मुझे पता है कि मेरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, इनफिनिट, तो इट्स हाईली लाइकली कि इन दो वैल्यूज पे मेरा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. तो what I do is के I see what's the limit as x approaches, क्योंकि मैंने एसिम्पटोट्स तो निकाल लिए, मेरे पास 2 एसिम्पटोट्स बन गए हैं. ये इधर एसिम्पटोट्स निकालने का सवाल हो तो वो तो इधर ही निकल आया. मेरे पास एक एसिम्पटोट वर्टिकल x इक्वल्स -2 है और दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल 2 है. बट आई एम आल्सो आस्क्ड टू स्केच द ग्राफ. तो मुझे बिहेवियर भी देखना है कि इस एसिम्पटोट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ग्राफ का किस तरह का बिहेवियर है. इज द ग्राफ अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो सिंस आई आल्सो हैव टू लुक फॉर दैट, तो अब मैं देखती हूँ कि लिमिट एज x अप्रोचेस -2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f of x क्या है. इट वुड बी इन्फिनिटी, दैट आई नो फॉर श्योर. बट पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी ये भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो what I do is कि I know on the number line अगर ये -2 है and I'm approaching -2 from the left hand side, so I'm talking of numbers less than -2. So if I'm talking of numbers less than -2, so let me substitute x equals a number less than -2 to f of x. ठीक है, तो वो जब मैं substitute करूंगी तो what I get is something less than 2 plus 3 times something less than -2 minus 1 over something less than -2 plus 2 times something less than -2 minus 2. So 3 something less than -2 और immediately less than -2, क्योंकि हम लोग -2 को अप्रोच ही तो कर रहे हैं ना. Something immediately less than -2 plus 3 would be positive. Something immediately less than -2 minus 1 would be negative. Something immediately less than -2 plus 2 would be negative. And something immediately less than -2 minus 2 would also be negative. तो दो negatives cancel हो जाते हैं और फिर लेकिन एक नेगेटिव बच जाता है, तो ओवरऑल जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा. सो इफ ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि as we approach -2 from the left hand side, the limit of our function is negative infinity. ठीक है, अब मैं साथ में मजीद देखती हूँ कि as I approach -2 from the right hand side, तो हमारी लिमिट जो है वो क्या बनती है. इज इट पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी. तो राइट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन -2 और मुझे अप्रोच करना है -2 को. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स ग्रेटर देन -2. तो मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूँ ग्रेटर देन -2 इन द एक्सप्रेशन ऑफ f of x, तो मेरे पास बनेगा मेरे पास आएगा कुछ ये greater than -2 plus 3 times something greater than -2 immediately greater than -2 minus 1 over something immediately greater than -2 plus 2 something immediately greater than -2 minus 2. And I would get if I add 3 to something immediately greater than -2, I would get something positive. If I subtract 1 from something immediately greater than -2, I would get something negative.
if I add 2 to something immediately greater than -2, I would get something positive. And if I subtract 2 from something immediately greater than -2, I would get something negative. So negative negative से cancel हो जाएगा and this results as positive. और मेरे पास ये जो limit है वो positive infinity आएगी. अच्छा, ये हम लोगों ने हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल्स -2 के लेफ्ट और राइट साइड पे बिहेवियर देख लिया फंक्शन का कि किस तरह का होगा. इसी तरह अब हम x इक्वल्स 2 के भी लेफ्ट राइट साइड पे बिहेवियर देख लेते हैं. तो अगर मैं वो बिहेवियर देखना चाहती हूँ तो व्हाट आई वुड डू इज के आई वुड फाइंड व्हाट लिमिट as x approaches 2 from the negative side or from the left hand side is. ठीक है, ये अभी मुझे साइन देखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा. सो आई हैव दिस नंबर लाइन एंड यहाँ पे 2 है मेरे पास. और अगर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल ऑफ द नंबर्स लेस देन 2. और अप्रोच जब करूंगी तो आई एम टॉकिंग ऑफ द नंबर इमीडिएटली लेस देन 2. तो let me substitute x equals something immediately less than 2 to the expression of f of x. So what I would see is के ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. +2 -2. ये मेरे पास पॉजिटिव टाइम्स टाइम्स ये बन रहा है समथिंग इमीडिएटली लेस देन 2 -1 पॉजिटिव ही होगा. एंड उसके बाद something immediately less than 2 + 2 is positive. Something immediately less than 2 -2 is negative. तो ये मेरे पास नेगेटिव बन रहा है. तो दिस implies के ये जो लिमिट है ये मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर है. अच्छा, और अब मैं इसी तरह अगर मैं देखती हूँ लिमिट एज x approaches 2 from the right hand side, ये भी इसी अंदाज से जब मैं एनालिसिस पूरा करूंगी तो आप लोग ये इसका एनालिसिस खुद करके देखना. तो यू गेट पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, डू द एनालिसिस योरसेल्फ. डू द एनालिसिस योरसेल्फ. अच्छा, तो ये अब हम लोगों ने बिहेवियर भी देख लिया है कि हमारे ये जो दो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हम लोगों ने निकाले हैं इनके लेफ्ट राइट पे फंक्शन का किस तरह का बिहेवियर है. और ये बिहेवियर क्यों देखा हमने, क्योंकि वी आर आल्सो आस्क्ड टू स्केच द ग्राफ. अच्छा, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स निकाल लिए, लेफ्ट राइट पे बिहेवियर देख लिया. अब हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं और उनके टॉप बॉटम पे बिहेवियर देखेंगे. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए what we know के what we know is के we actually have to find what f of x approaches to when x approaches to infinity. That can be either positive infinity or negative infinity. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ना f of x को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख लेती हूँ. मेरे पास f of x का एक्सप्रेशन अभी तक कुछ इस तरह का है. x plus 3 into x minus 1 x plus 2 into x minus 2. इसको मैं यूं फर्दर कह लो मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ. x square minus x plus 3x minus 3 over x square minus 2x plus 2x minus 4. So ये बन जाएगा मेरे पास x square plus 2x minus 3 over x square minus 4. ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है कि जैसे दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है.
और मैंने फाइंड करना है लिमिट एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऑफ f ऑफ x, बल्कि अलग अलग से करके फाइंड करती हूँ, ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी अलग करती हूँ, नेगेटिव इंफिनिटी अलग, क्योंकि यू हैव टू हैव दिस प्रैक्टिस। अच्छा, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है, मुझे पता है कि एक रैशनल फंक्शन के लिमिट, इनफिनिट लिमिट मैं इस अंदाज से फाइंड करती हूँ कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हाईएस्ट डिग्री टर्म्स और उनके कोफिशिएंट्स लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे दैट इज 1x², ठीक है, तो वो मैं लिख लूंगी। एंड अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया मेरे पास, तो दिस विल बिकम लिमिट एज x अप्रोचेस पॉजिटिव इंफिनिटी ऑफ 1 व्हिच इज 1। और इसी तरह मैं लिमिट एज x अप्रोचेस नेगेटिव इंफिनिटी अगर निकालती हूँ, तो इट वोंट बी एनी डिफरेंट, इट वुड आल्सो बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो x पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपके जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है दैट इज एट x इक्वल्स, मतलब आपका जो फंक्शन है दैट विल अप्रोच 1 व्हेन x अप्रोचेस पॉजिटिव इंफिनिटी एंड व्हेन x अप्रोचेस नेगेटिव इंफिनिटी, योर फंक्शन वुड अगेन आल्सो अप्रोच 1। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट that is y equals 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, हमने एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल भी देख लिए और वर्टिकल भी देख लिए। अब हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो से के इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, ग्राफ इधर ही प्लॉट कर लेते हैं। से के ये आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये पॉइंट -1 -2 1 2 1 2 -1 -2। अच्छा, मुझे पता है कि दो मेरे वर्टिकल एसिम्पटोट्स बने हैं मेरे पास, एक x इक्वल्स -2 और एक वर्टिकल एसिम्पटोट था मेरे पास x इक्वल्स 2, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास एक है दैट इज y इक्वल्स 1। तो सबसे पहले तो मैं एसिम्पटोट्स ड्रॉ करूंगी, ठीक है। एक बार मैंने एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लिए, तो इसके अलावा मुझे ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक और चीज की साथ जरूरत होती है, वो होती है आपके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैं जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके हेल्प उसका इस्तेमाल करूंगी। मैं एक बार x इक्वल 0 उसमें पुट करूंगी और दूसरी बार मैं f ऑफ x को 0 पुट करके x निकालूंगी। तो लेट्स सी, मैं देखती हूँ कि मेरे इंटरसेप्ट्स क्या बन रहे हैं। सो हमारा फंक्शन था कुछ ये, पुट x इक्वल 0, तो f ऑफ 0 जो है वो मेरे पास बन रहा है 0 + 3 3 इंटू -1 ओवर 2 इंटू -2। अच्छा, तो ये मेरे पास बन जाएगा -3 by -4 which is 3/4। So when x is 0, y is 3/4। तो एक पॉइंट तो मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ ग्राफ में 3/4 का ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पुट f of x equal 0, जब मैं f of x को 0 पुट करती हूँ तो आई गेट x + 3
इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 0, और यहाँ से मेरे पास आता है x इक्वल -3 एंड x इक्वल 1. ठीक है, तो when our function is 0, the values of x are -3 and 1. तो ये भी दो डिफाइंड पॉइंट्स हैं हमारे पास ग्राफ में. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बिहेवियर्स की तरफ आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर देखे थे. हमने ये देखा था कि as x approaches 2 from as x approaches -2 from the left hand side, our function approaches -infinity. So -2 को मैं approach कर रही हूँ from the left hand side, तो our function should approach -infinity, यानी कि हमारा function कुछ इस तरह जाएगा. ठीक है, और उसने इस पॉइंट से भी गुजरना है, ये भी हमें पता है, या ये पॉइंट भी डिफाइंड है, ये -3 का पॉइंट. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात ये पता है कि ये जो as x approaches -infinity, as x approaches -infinity, our function approaches 1. ठीक है, तो as x approaches -infinity, our function is supposed to approach 1. तो ये ग्राफ इधर से गुजरते हुए इस तरह से जाएगा. इतने पोर्शन में तो ग्राफ इस तरह का बनेगा. अच्छा, अब मैं -2 को अप्रोच करती हूँ, ये -2 की लाइन है. ठीक है, इसको अप्रोच करती हूँ मैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड. जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ x इक्वल्स -2 को, तो मेरा फंक्शन अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को. दिस वी हैव सीन हियर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, और इस ग्राफ ने चलो वो बात करते हैं आगे. x इक्वल्स 2 पे अगली मेरे पास वो है एसिम्प्टोट बनी हुई है, और x इक्वल्स 2 पे मेरा जो ग्राफ है वो अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को. हाँ, x equals x when x approaches 2 from the left hand side, my graph approaches -infinity. तो ये ग्राफ कुछ यहाँ पे इस तरह का